In this part, we are going to study polar and non-polar dielectrics. As you know, dielectrics are insulating materials which transmit electric effects without actually conducting electricity. This dielectric we have already studied in our previous chapter also. So this dielectric is the same dielectric that we have discussed earlier. It is actually insulating material which transmit electric effects without actually conducting electricity. It means it does not conduct electricity, but it gives electric effect. So these dielectrics can be explained on the basis of classification as non-polar and polar dielectrics. So first, how these are non-polar and polar dielectrics made? As we know that every atom there is positively charged nucleus and negatively charged electron cloud. The two oppositely charged regions have their own centers of charge. जैसे मतलब क्या है कि अगर जैसे हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन, दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज ऑक्सीजन एंड दिस वन इज कार्बन. देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, ऐसे बना लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन. ये एक स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एटम यहाँ बीच में है, यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन एटम है, ये एक ही लाइन में. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव का काम कर रहा है, दूसरे के दो जो है वो नेगेटिव का काम कर रहे हैं. द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स. देखिए जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होंगे, मान लीजिए किसी भी एटम में उसके जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं वो होंगे तो अलग अलग जगह प्लेस, लेकिन उनका जो सेंटर होगा वो उनका सेंटर ऑफ मास पे ही प्लेस होगा, उनका सेंटर ऑफ चार्ज. तो सेंटर ऑफ चार्ज अगर हम डिफाइन करते हैं तो सेंटर ऑफ चार्ज इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, उसको कहेंगे पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज. इसी तरह निगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा? अगर मान लीजिए निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पे प्लेस्ड हैं, उन सब का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो इस केस में देखिए इस O का दोनों का सेंटर यहाँ बीच में लाई कर रहा है और C का भी यहाँ बीच में लाई कर रहा है, यानी C के बीच में ही पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है. यानी इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कहाँ लाई कर रहा है? ठीक इसी सेंटर पे लाई कर रहा है. यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज इज कोइंसाइडिंग. ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं इन डाइलेक्ट्रिक्स को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर when the center of mass of positive charge coincides with the center of mass of negative charge. This one. Alright, so this is our, so CO2 is an example of non-polar dielectric. Similarly, H2, O2, these are non-polar dielectrics. Now, polar dielectrics. One example is there, water molecule. In this case, bonds are such that they form an angle H, this should be large, O, this one is O. Here the center of mass of H and H lies somewhere here, but center of O lies here, so they are not coinciding. Here plus is here and minus is here, so these are not coinciding. So this is a polar dielectric. So polar, the center of mass, or we can say the centers of mass
of positive and negative charges do not coincide because of the asymmetry shape of the molecules. So these type of, like H2O and any other example, yes, HCl is something like this. HCl, here HCl are some examples of polar molecules. Alright, so these type of molecules will be used in explaining dielectric polarization. So let's come to another topic, that is dielectric polarization. So what is dielectric polarization? Polarization simply means the separation of two different entities, or the separation means some kind of spatial separation. When a non-polar dielectric, consider a non-polar dielectric, consider this non-polar dielectric is placed in no electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बाहर यहाँ कहीं, तब ये इसका नॉन पोलर है तो प्लस और माइनस एक ही जगह पे लाई करेंगे इसके सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्लेस्ड है, देन दिस पॉजिटिव एंड निगेटिव विल गेट सेपरेटेड। हाउ? निगेटिव, सिंस electric field moves from positive to negative, the negative of this center will move towards positive side, and this positive of this center will move towards negative side, and they get polarized. All right, so in non-polar dielectrics, initially positive and negative charges are at the same position, or the center of mass of positive and negative charge coincides, but when we place a non-polar dielectric inside an electric field, then the polarization is developed between these two positive and negative charges. So we can write, when a non-polar dielectric is held in an external field, the two charges, or the two centers, we can write centers of positive and negative charges in the molecules are separated. And is said to be polarized. This is polarized. A tiny S equal and opposite charge separated by some distance, a tiny dipole moment is developed or imparted to each molecule.
So some kind of dipole moment is also generated, and the direction of dipole moment will be from positive to negative to positive, and that is p vector. It is same as in the direction of external electric field. Now for polar dielectric, consider a polar dielectric. When polar dielectric is placed in an initially, a polar dielectric has no coincidence of positive and negative center of masses, so they have very small dipoles. मतलब क्या है कि जैसे HCl है, तो HCl इनके बीच में कुछ सेपरेशन रहता है, इसी तरह और HCl है, इस तरह से इस तरह, और ये इनके बीच के इनके पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कोइंसिडेंस नहीं रहता है, तो ये रैंडम ओरिएंटेड रहते हैं। तो ये रैंडम ओरिएंटेड हम इस तरह से दिखा रहे हैं अलग अलग। तो ये एक तरह के सभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के पास अपना खुद का डाइपोल मूवमेंट होता है, वेरी टिनी डाइपोल मूवमेंट होता है। लेकिन जब हम इसे फील्ड में रखते हैं तो ऐसे तो ये रैंडम ओरिएंटेड रहते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, रैंडमली किस कारण से ओरिएंटेड? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E0 लगाया जिसकी डायरेक्शन इधर है, तो इधर से इधर है, तो पॉजिटिव निगेटिव जो रहेंगे वो सभी इधर ओरिएंट हो जाते हैं और पॉजिटिव इधर, और इस तरह से जितने भी छोटे छोटे टीनी डाइपोल्स थे, डाइपोल मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे खड़े रहना, ये सभी एक निश्चित डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। यानी इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो छोटे छोटे टीनी डाइपोल्स थे, और डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट सभी का ऐसे रहा होगा वेक्टर क्वांटिटी में, कुछ इधर वेक्टर, कुछ इधर वेक्टर, कुछ इधर, यानी ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट नॉन पोलर का इनिशियली नेट डाइपोल मूवमेंट 0 रहा होगा। क्यों? क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन है सभी वेक्टर्स का अलग अलग, तो 0 रहा होगा इनिशियली। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया तो नेट डाइपोल मूवमेंट इनका 0 ना होके सभी एक दिशा में ओरिएंट हो गए, सभी छोटे छोटे पीस जो हैं वो इधर से इधर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब इनका नेट डाइपोल नॉन जीरो हो जाता है, यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का नेट डाइपोल मूवमेंट इनिशियली रैंडम ओरिएंटेशन के समय कितना रहता है? 0। सॉरी, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का कितना रहता है? 0। और जैसे ही हम फील्ड में रखते हैं वैसे ही वो नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट अटेन कर लेता है। तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इनका और ये डायरेक्शन क्या होती है? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, यहाँ जो वैल्यू होती है इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे एक क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं अल्फा। P इज इक्वल्स टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, वेयर ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है कि कितना डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इट इज P इज इक्वल्स टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई, वेयर अल्फा इज अ न्यू क्वांटिटी, it is atomic polarizability atomic polarizability ये बताती है कि कोई डाइपोल जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो उसमें कितना डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो सकता है अगर उसे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे अल्फा और एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, इट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम और फ्री स्पेस। अल्फा इज इक्वल्स टू, एंड वी कैन से द डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू कूलम मीटर, P इज एक्चुअली द कूलम मीटर, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई न्यूटन पर कूलम विच इज़ द dimension of E naught. So dimension of alpha will be equals to, or solving all this, m3. This is dimension of volume,
वॉल्यूम. So atomic polarizability is a quantity having dimension of volume. Its value is of the order 10 to the power minus 29 to 10 to the power minus 30 मीटर क्यूब. इसका बहुत ज़्यादा अभी यहाँ रेलेवेंस नहीं है. विच इज़ ऑल्सो दी ऑर्डर. अगर आपको याद हो कि एक एटम का जो साइज़ होता है 10 पावर माइनस 10 होता है, जो रेडियस होता है, और वहाँ पे ऑर्डर यही कुछ निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम. ठीक है, तो ये है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. इसके बारे में केवल अभी आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है. थैंक यू.